AGT Live 24/7। आप सब देख रहे हैं AGT Live 24/7। এই হচ্ছে AGT Live 24/7। This is AGT Live 24/7। করছেন শুভং কুরুধ্বম কল্যাণম আরোগ্যম ধন সম্পদা শত্রু বৃদ্ধি বিনাশায় দীপজ্যোতি নমস্তুতে। असदोमा सद्गमयो तमस भाई मोबाइल टा नामा उड़े মূর্তিটা তুললে দেখেন দেখেন না সারা দেখেন না পুরো আয়া বড় বড় আইটেমগুলো আনতে পারছি এদিকে পুরান এদিকে ভিডিও পুরান এদিকে দেখেন खाली करो ना आगे दो एकदम में दिखाई दे भीतर टिक मोबाइल नाम रे भाई देख लो इस वीडियो में मिनिस्टर को कुणाल इंडिया से आया था So ये इसका थर्ड लेवल का प्रोग्राम ट्रेनिंग भी किया गया। ये हमारे रिनोड आर्टिस्ट ड्यूरिंग बास्केट स्पेस ट्रेनिंग।
চল আমরা গিয়ে পুরি যাই দাঁড়া ভাই বাদ উঠাইছে ভাই District Magistrate, North Tripura, taking the prize on behalf of North Tripura District. PM Vishwakarma Scheme, a groundbreaking initiative launched in September 2023 by the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji. This central sector scheme aims to formalize and uplift traditional artisans and craftspeople across the nation. The scheme will provide comprehensive support to enhance the quality and reach of their products and services. The PM Vishwakarma scheme offers a range of benefits including skill upgradation, access to modern tools and easy credit facility. এরপর আমরা চলে যাচ্ছি কন্ডিশন ভিডিও বিজিত দাস কাউন্সিল নগর পঞ্চায়েতের পুরস্কার এরপর বেস্ট পারফর্মিং নেক্সট বেস্ট পারফর্মার আরবান লোকাল বডিজ তারপরে প্রভাত রুদ্রপাল ত্রিপুরা স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংকের পক্ষ থেকে তাকে ঋণ দেওয়া হবে boat maker, blacksmith, hammer and tool kit maker, যারা আর্মারার আছেন, লকস্মিথ যারা তালাওয়ালা তাদের কথা চিন্তা করেছেন, গোল্ডস্মিথ যারা স্বর্ণকার, যারা কুমার পোটার তাদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, স্কাল্পচার যারা মূর্তিকার, স্টোন কারবার, স্টোন ব্রেকার এই প্রকল্পের তারা হচ্ছে বেনিফিশিয়ারি। কোবলার আছে চর্মশিল্পীতে যারা যুক্ত আছে, মেশন আছে রাজমিস্ত্রি, বাস্কেট যারা বানায়, ম্যাট বা ঝাড়ু তৈরি করে, ডল এবং টয় মেকার, বারবার যারা নাই, গার্ল্যান্ড মেকার যাদেরকে মালাকার বলা হয় এবং ওয়াশারম্যান যাদেরকে ধোবি বলা হয়। এই 18টা যে আমাদের ট্রেড সাথে যারা যুক্ত আছেন সেই বিশ্বকর্মাদের কথা চিন্তা করে এই বিশ্বকর্মা যোজনা শুরু হয়েছে। আমি এখানে ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্ট্রিকে এবং যারা এর সাথে যুক্ত সমস্ত আধিকারিক থেকে শুরু করে কর্মচারীদেরকে আমি বলবো ওনারা যেভাবে এখানে কাজ করেছেন। আজকে আমরা এখানে যখন আসছিলাম বিভিন্ন স্টল আমরা দেখলাম, সেই স্টলেও কিন্তু আমরা দেখলাম এই যে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে এমএসএমইর মাধ্যমে যে সামগ্রিকভাবে এই প্রকল্প যাতে সাকসেস হয়, যে ওনাদের সাহায্যে আজকে কিন্তু তার একটা চিত্র আমরা এই বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করার পরে সেটা আমরা দেখতে পেলাম। আমরা জানি যে এই বিশ্বকর্মা যোজনা এটা সিলেকশন হওয়ার পরে ত্রিস্তরীয় পর্যায়ে সেটা সিলেকশন হয়। প্রতিদিন তাদেরকে যখন ট্রেনিংয়ে তাদের সিলেকশন করার পরে তাদেরকে যখন ট্রেনিংয়ে পাঠানো হয় 500 রুপিস করে 5 থেকে 7 দিন পর্যন্ত ওদের ট্রেনিং দেওয়া হয়, তাদের স্টাইপেন্ড দেওয়া হয় এবং 15 দিন সময় যদি তারপরে আবার ওনাদের ট্রেনিং দিতে হয় সেটাকে বলে অ্যাডভান্স ট্রেনিং, তার সাথেও স্টাইপেন্ডের সাথেও সেই ট্রেনিংও দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আর আজকে আমরা একটু আগে দেখলাম এখানে যে পিএম বিশ্বকর্মা সার্টিফিকেট এবং আইডি কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে এবং স্কিল ভেরিফিকেশনের পরই ভাউচার বা ইউপির মাধ্যমে 15,000 টাকা টুল কিট, একটু আগে আমরা এখানে টুল কিটও আমরা দিয়েছি এবং সেই টুল কিটের মাধ্যমে তারা যাতে আরও স্কিল ওয়েতে ট্রেনিং দেওয়ার পরে তাদের কাজ আরও ভালো হয় সেই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এখানে আমরা সবাই জানি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলেন এবং আমাদের এটা আমাদের আইডিওলজিও যে সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমেই আমরা সরকারে থাকতে চাই। আজকে যখন আমরা দেখলাম 17 সেপ্টেম্বর 2023 সালে বিশ্বকর্মা পূজার দিন, যাদের কথা কখনো কেউ ভাবেনি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এই প্রাইম মিনিস্টার বিশ্বকর্মা প্রকল্প উনি ঘোষণা দেন প্রায় 13,000 কোটি টাকার সেই প্রকল্প।
আর ওরা যারা বিভিন্ন ট্রেডে উপস্থিত আছেন, যাদের কথা কেউ ভাবেনি, তাদের কথা চিন্তা করে এই প্রকল্প শুরু হয়েছে। এবং ভারতীয় অর্থনীতিতে এই শ্রমশক্তিরা হচ্ছেন বলতে গেলে বিশেষ কারিগর। আমরা যাই বলি না কেন, জিডিপি এত বেড়েছে, তার মধ্যে এই অসংগঠিত শ্রমিকদেরও বিশাল একটা মানে এই অর্থনীতিতে ওনাদেরও একটা আমাদের এই জিডিপির ক্ষেত্রে, অর্থনীতিতে উন্নতির ক্ষেত্রে ওনাদেরও একটা যোগদান রয়েছে। এখানে মূলত এখানে বলা হয়েছে 18টা শ্রেণী কারা কারা। এখানে অলরেডি আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন, যাদের সম্পর্কে আমরা ভাবতাম যে ওনারা ওনাদের কাজ করছে, ওনারা ওনাদের মতো কাজ করুক, এই যে গুরু শিষ্য পরম্পরা, জেনারেশন টু জেনারেশন এই ধরনের কাজ হচ্ছে, তাদেরকে আরও স্কিল করে তাদের উপাদানগুলো যে প্রোডাক্টগুলো সেইগুলোও যেন ভালো হয় এবং সারা ভারতবর্ষে এবং অন্তর্রাষ্ট্রেও যেন তার ব্যবহার এবং তার গুণগত মান উন্নত হয়, তার জন্য যে চিন্তাভাবনা, এর নাম হচ্ছে প্রাইম মিনিস্টার বিশ্বকর্মা যোজনা। অনারেবল মিনিস্টার অফ MSME গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া শ্রী জিতেন্দ্র মাঝিজি, আমি ওনাকে ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে এবং ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে ওনাকে হার্দিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি ত্রিপুরাতে। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন শ্রীমতী শান্তনা চাকমা, অনারেবল মিনিস্টার इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। ताछाड़ा आज त्रिपुरा के लिए एक बड़ा गौरवशाली दिन है जब हम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत अनेक प्रकार के कार्यक्रम को देखा और अनेक प्रकार के पुरस्कार, चाहे नगद हो, टूल किट्स हो या प्रमाण पत्र हो, जब वितरित कर रहे थे तो हमें अपार खुशी हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा था वो सपना कहीं न कहीं साकार होता दिखता रहा है। आप जानते हैं कि एक साल, एक वर्ष से अधिक PM विश्वकर्मा योजना का शुरुआत हो गया है और इस अवसर पर तमाम देश में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसका अभीष्ट यानी उसका उद्देश्य यही है कि हम समाज के गरीब से गरीब लोगों को उद्यम के माध्यम से रोजगार दे सकें। हमारे पूर्वजों ने भी कहा था कि उत्तम खेती मध्यम बान नीच चाकरी भीख निदान। समझ गए हो इस बात को? आज बात उल्टी पड़ी है। लोग कृषि और रोजगार से ज़्यादा नौकरी को महत्व दे रहे हैं और यही कारण है कि आज 140 करोड़ की आबादी भारत में है और नौजवानों की बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी बात को दृष्टिगत करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के माध्यम से नियोजन की बात कही। सरकारी नौकरी संभव नहीं है, लेकिन हम रोजगार, स्वरोजगार तो प्रदान कर ही सकते हैं और इसी के दृष्टिकोण से हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा
खास करके ग्रामीण परिवेश में, कि हमारे बच्चे, हमारे लोग कैसे अपने को सरवाइव कर सकते हैं, जीवित रख सकते हैं। अभी अभी एक महिला जिनको टूल किट दिया जा रहा था, उनकी भाषा हम पूरा नहीं समझ सके, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताने का काम किया कि वो बोल रही थी कि हम जीवन भर आभारी रहेंगे, जीवन भर एक काम जो हमको मिला है करने जा रहे हैं, उससे हम लोगों का परवरिश होगा, मरते दम तक इसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये दर्शाता है कि ग्रामीण परिवेश में कितने लोग बेरोजगार थे, उनको रोजगार देने के संबंध में कुछ आशाएं बढ़ी है, और इसी के चलते आज एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसके लिए मुझे प्रसन्नता है। आप सभी के सामने जैसा मैंने कहा कि 1 वर्ष बीत गया है विश्वकर्मा योजना का, और इसमें विश्वकर्मा योजना इसलिए कहा गया कि हमारे देश में अनेक प्रकार के कला, अनेक प्रकार के उद्यम से लोग आज नहीं, प्राचीन काल से अपने जीवन को सुधारते थे, और जीवन को तो सुधारते ही थे, उससे ज़्यादा समाज और देश को समृद्ध बनाते थे। यही कारण था कि भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी, सोने की चिड़िया भारत को कहते थे। बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं थी। आज आपको मालूम होगा कि समस्त भारत में 24,000 बड़े बड़े कंपनियां हैं। उससे फायदा तो हो रहा है, नियोजन तो है कुछ हद तक, लेकिन आप जानते हैं कि जो हमारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है, इसकी संख्या 6 करोड़ से ज़्यादा है, और 6 करोड़ से ज़्यादा संख्या होने के बाद इसमें जो लगे हुए लोग हैं, करीब करीब 20 से 21 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो कहने का मतलब कि गांव घर के लोगों को अधिक से अधिक, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आसपास के लोगों के जीवन को भी ये सब प्रभावित करता है। और 17 सितंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जसोभूमि में विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर इस योजना की शुरुआत की गई थी, और यह 18 व्यवसायों में पारंपरिक जो कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उनको सहायता मिलती है। और वो अगर हम गिनावें तो उसे कहा जा सकता है कि कौन कौन लोग इसमें लाभान्वित होते हैं। तो ये 18 में अनेक लोग हैं जिनके बारे में आपको जानकारी है कि वे कौन कौन हैं। तो इसमें इस योजना में शिल्पकारों को पहचान पत्र, प्रमाण पत्र जैसा आपने देखा, और मान्यता सम्मान प्रदान की जाती है। उनका सामर्थ्य और संवर्धन, कौशल उन्नयन भी एक भाग इसमें है। लाभार्थियों को व्यवसायों एवं प्रशिक्षकों के द्वारा 6 दिवसीय गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाता है। लाभार्थियों को मजदूरी मुआवजा के रूप में प्रतिदिन 500 रुपया का वजीफा और 1000 रुपया जाता भत्ता और मुफ्त भोजन एवं आवास की सुविधा दी जाती है। कारीगर और शिल्पकारों को संबंधित व्यवसायों में आधुनिक और नवीनतम उपकरणों का उपकार करने सक्षम के लिए 15,000 रुपया का टूल किट्स का प्रोत्साहन और प्रोत्साहन दिया जाता है, वो जैसा कि अभी आपने देखा। और कारीगर उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग सहायता प्रदान करना भी इस योजना का हिस्सा है। हम उनको सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं देते, उनको प्रोत्साहन भत्ता ही नहीं देते, उनको 15,000 रुपया ही नहीं देते, बल्कि उनके जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स हैं,
उनको जब तक बिक्री नहीं होगी, उसका बाजार जब तक नहीं मिलेगा, तब तक उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ये पीएमजी विश्वकर्मा योजना के तहत इसका भी प्रावधान है कि उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग सहायता प्रदान करना भी इस योजना का हिस्सा है। और अब तक पूरे देश में आप जानते होंगे कि 2,60,000 से अधिक ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 2.5 करोड़ से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुआ है। रजिस्ट्रेशन होता है, आवेदन प्राप्त होता है। प्राप्त आवेदनों का प्रथम स्तरीय सत्यापन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाता है। कहीं कहीं ग्राम पंचायत स्तर पर भी ये विलंबित किया जाता है। यहाँ पर सरकार को और इस योजना में लगे लोगों को भी थोड़ा एक्टिव होने की ज़रूरत है कि ग्राम पंचायतों को मीटिंग बुला करके प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है कि ऐसे जब आवेदन आते हैं तो उसको अपने तहत रोके नहीं, बल्कि आगे उसको प्रोसेस कर दें। और प्राप्त आवेदन का जैसे पंचायत स्तर पर किया जाता है और द्वितीय स्तर पर 750 से अधिक जिलों में जिला कलेक्टर के माध्यम से सत्यापन किया जाता है। पहले तो पंचायत से किया जाता, उसके बाद सभी जिला के जिला कलेक्टर से उसका सत्यापन होता है और त्रिस्तरीय सत्यापन के बाद विश्वकर्मा लाभार्थी का पंजीकरण किया जाता है। इस प्रकार से एम विश्वकर्मा योजना व्यापक स्तर पर पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है, जैसा प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। इस योजना के तहत देश भर में 23,50,000 से अधिक कारीगरों और शिल्पकारों का पंजीकरण किया गया है। अब तक हम 30 लाख पंजीकरण टारगेट के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। त्रिपुरा राज्य में 18,906 कारीगरों और शिल्पकारों को इस योजना के तहत पंजीकृत किया गया है। कुल पीएम विश्वकर्मा योजना में से सफल पंजीकरण के दर त्रिपुरा राज्य में लगभग 36% है, जो पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक है और सराहनीय विषय है। हम इस अवसर पर कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो हमने समीक्षा की है उसमें पूर्वोत्तर राज्य में, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी रात दिन सोचते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य का विकास कैसे हो, लेकिन जहाँ तक पीएम विश्वकर्मा योजना का सवाल है, त्रिपुरा को छोड़कर अन्य राज्यों में उसकी प्रगति बहुत कम है। उस ओर हमारे विभाग का ध्यान जाना चाहिए और हम निर्देश भी दिया है अपने पदाधिकारियों को कि जब प्रधानमंत्री जी का ये विज़न है विश्वकर्मा योजना को कराना और ख़ास करके पूर्वोत्तर राज्यों में, वहाँ पर इसकी स्थिति अगर कम हो, हम पुअर हो, तो ये बहुत सोचनीय विषय है। लेकिन सौभाग्य से हम चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस संवेदनशीलता को समझने का काम किया है और समझ करके जो प्रगति की है, पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अच्छी प्रगति है जहाँ तक विश्वकर्मा योजना का सवाल है।